Your skin is doing something amazing every second to keep your body at right temperature. But how? Let's find out. This is one of the easiest way to understand temperature regulation for O-level biology 5090. Let make the skin homeostasis simple for you. Here is the past paper question along with this skin explanation. This is the 2026 past paper question. So we will discuss later on. So what is skin? Skin is actually the main organ. It is the largest organ which is responsible to control the temperature regulation. So it is the largest organ of the body, right? And what is the different function of the skin? For example, skin protect our body from the germs. It prevent us from the injury, regulate the body temperature. It detect the sensation. It eliminate waste through the sweating, right? And vitamin D production through the temperature or the sunlight, right? This is all about the skin. And here is a diagram of the skin, which most of the time examiner asks this question about the 6 marks. 6 marks question is asking about this diagram. So here is the course outline of the homeostasis, which we are discussing right now. Yes, in the last video, we discussed about the homeostasis and negative feedback and the set point over there, right? And we discussed about the thermoregulation as well. But now in this video, we are discussing only the skin. So how skin is responsible to do the vasodilation and vasoconstriction, how these different organs responsible to perform their work, right? So due to the here is a course outline of 5090 temperature control. Yes, we discussed all these things in our last video, and here we are discussing about the temperature control. So यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे we discuss करेंगे, हम we discuss about the skin, right? Skin की discussion करेंगे and we discuss about the all parts: hair reactor, muscles, sweat gland, receptor, sensory neuron, blood vessels, and fatty tissues. These are the very important parts, and examiner asks frequently this type of parts over there with the function. तो important चीज क्या है इसके अंदर? important चीज ये कि you have to understand all the parts of the skin and the function of the skin. ये पास पेपर में भी क्वेश्चन जो है P1 में भी आते हैं, P2 बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो आपका ये टॉपिक अब इम्पोर्टेंट है. तो होम्योस्टेसिस में हम इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी करेंगे. फिर हम ये देखेंगे कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंसुलेशन इन मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. हम ये देखेंगे कि हाउ अवर स्किन is responsible to maintain the constant internal environment, right? We will discuss about the sweating and shivering. There are the two homeostatic control regulation in our body. One is the sweating, another is the shivering. So we will discuss all these in a diagram. Yes. So in your skin, when we talk about the skin having a different layer over there, right? You can see the diagram. This is the complete diagram of the skin, right? This is the epidermis, this is the dermis, and this is the hypodermis layer, right? This is the epidermis, this is the dermis, and this is the hypodermis layer. First of all, we can say that the skin divided into three layers: epidermis, dermis, and the last one is the hypodermis layer. Here is a very simple diagram which I made for you for your better understanding. अच्छा, यहाँ देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 3 layers होती हैं स्किन में. तो देखिए, द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निफाइड लेयर. द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निफाइड लेयर, राइट? जो कि आपकी आएगी एपिडर्मस लेयर में. एक आपकी एपिडर्मस लेयर होगी, और ये जो मिडिल लेयर होती है इसको हम कहते हैं डर्मिस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डर्मिस. एंड द लास्ट लेयर इज कॉल्ड द हाइपोडर्मिस. The upper layer, which is called the epidermis, having the 3 layers over there: cornified layer, granular layer, and malaphysian layer, right? The cornified layer is actually the layer which having the dead cell, dry, flat, horny cells over there. And it is the deposition, it is the place where the deposition of keratin, right? This is the cornified layer having the dead cell, and here is a deposition of keratin, right? Here is a deposition of the keratin protein. All right. The cornified layer is the water resistant and prevent uncontrolled
water loss by evaporation, right? So quantified layer is actually the waterproof layer. ठीक है, this is the quantified layer which I discussed you that told you this is the dead made up of the dead cell. तो हम इसको कहते हैं कि ये एक वाटर प्रूफ लेयर है जो कि हमारे जो है वो हमारी बॉडी को इंजरी से बचाती है और हमारी बॉडी में जर्म्स वगैरह को एंटर होने से रोकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट हमने बात क्या पढ़ी कि इसके अंदर कैरेटिन की डिपोजिशन हुई हुई होती है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं क्वान्टिफाइड लेयर की, राइट। अच्छा, अब क्वान्टिफाइड लेयर के बाद हम ये देखते हैं कि क्वान्टिफाइड लेयर जो है वो आपकी इसके बाद जो अच्छा ये क्वान्टिफाइड लेयर है ये आपकी थिकेस्ट लेयर होती है, राइट। और ये आपकी जो सोल होते हैं, फीट के जो सोल होते हैं वहां पर भी क्वान्टिफाइड लेयर होती है। और इसी तरह से जो आपके पाम्स होते हैं, हैंड की जो पाम होती है वहां पर भी ये क्वान्टिफाइड लेयर होती है एंड इट इज हैविंग द डेड सेल, राइट। ये थिकर लेयर होती है। ओके, ये थिकर लेयर होती है। अच्छा, इसके बाद ये देखिए इसमें ही आपके पास जो है यहाँ दिया हुआ है ग्रैन्युलर लेयर। अब इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ग्रैन्युलर लेयर दिया हुआ है। अच्छा, ये ग्रैन्युलर लेयर जो होती है ये कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। ग्रैन्युलर लेयर जो है ये आपके पास होती है, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। इसके पास होते हैं लिविंग सेल्स और लिविंग सेल्स के अंदर कंटिन्यूस माइटोसिस होता रहता है और माइटोसिस के थ्रू जो है वो न्यू सेल्स जो है वो बनते रहते हैं। लिविंग सेल्स में इसमें माइटोसिस होता रहेगा एंड ड्यू टू द माइटोसिस न्यू सेल्स फॉर्म, right? And when the new cells form, they move upward because dry and horny giving rise to the cornified layer. ऊपर तो आपको पता है कि कॉर्निफाइड लेयर है, ड्राई है और वो हॉर्नी सेल्स हैं और डेड सेल हैं। लेकिन ये जो लिविंग सेल्स होते हैं इनमें माइटोसिस कंटिन्यूस होता रहता है और माइटोसिस के बाद जो है वो ये सेल्स जो होते हैं दे मूव कंटिन्यूसली अपवर्ड, ठीक है। ये अपवर्ड मूव करते रहते हैं। और अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि मेलिफिजेंट लेयर में एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि ये इसमें लिविंग सेल्स तो होते ही होते हैं बट दे आर यूजुअली पिगमेंटेड। जैसे ये मेरी पिक्चर में आपको बना के बताया हुआ है, दे आर यूजुअली पिगमेंटेड। इट इज अ पिगमेंटेड इन दीज सेल्स व्हिच गिव द स्किन इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। अब ये जितनी ज्यादा इसके अंदर पिगमेंटेशन होगी ये आपकी स्किन को वैसे ही कलर देगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रैन्युलर लेयर है इसमें मेलानिन की प्रोडक्शन होती है, राइट। ये जो ग्रैन्युलर लेयर है इसमें मेलानिन की प्रोडक्शन होती है। ओके, सबसे पहले हमने क्वांटिफाइड लेयर की बात की। इट इज अ डेड सेल मेड अप ऑफ डेड सेल कंसिस्ट ऑफ केराटिन प्रोटीन, राइट। हार्ड लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर होती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है जर्म्स वगैरह से। फिर हमने पढ़ा ये जो है एक और लेयर हमने पढ़ी, इसका नाम है हमारा ग्रैन्युलर लेयर। ग्रैन्युलर लेयर में हमने क्या पढ़ा कि ग्रैन्युलर जो होती है लेयर आपकी ये डॉटेड्स होती है, पिगमेंटेड होती है और यही आपकी स्किन को कलर देती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेलानिन, राइट। दिस इज थर्ड इज द मेलिफिजन लेयर। मेलिफिजन लेयर जो होती है वो आपकी पिगमेंटेड, यस, ये मेलिफिजन लेयर जो है ये एक्चुअली आपकी पिगमेंटेड होती है और ये जो मेलिफिजन लेयर होती है ये एक्चुअल में आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन करती है। मेलिफिजन लेयर जो है वो मेलानिन की प्रोडक्शन करती है और जबकि ग्रैन्युलर लेयर जो होती है ये आपकी क्या होती है, ये लिविंग सेल्स होते हैं। और ये लिविंग सेल्स होते हैं ये माइटोसिस के थ्रू इसके अंदर जो है कंटिन्यूस माइटोसिस होती रहती है, लिविंग सेल्स बनते रहते हैं और ये अपवर्ड होते रहते हैं। और इस तरह से हमारी जो ऊपर वाली लेयर है वो तो डेड होती है, उसके फौरी बाद जो लेयर होती है वो आपकी लाइव सेल्स होते हैं। और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो वो मेलिफिजन लेयर है और मेलिफिजन लेयर में पिगमेंटेड होते हैं। पिगमेंटेशन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, पिगमेंटेशन जो है वो आपकी बॉडी के कलर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मेलेनिन पिगमेंट। तो अच्छा ये हो गया, ये सब देख लिया अब हमने इसमें। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से जो इंपॉर्टेंट है वो आपके इसके सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब इसकी लेबलिंग मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रही हूँ। ओके, अब अगर हम इसकी लेबलिंग को देखें, यस, ऑलराइट, यस, दिस इज द cornified layer, this is the granular layer, and this is the maleficent layer, right? Okay, what are these? These are the simplest diagram which I made for you. Okay, this black line is called actually the hair. This is called hair, right? And this, the green one, this is this one. This is called the hair erector muscles, right? The green one is called
hair erector muscles. Okay, what is this? This is called the capillary. In the skin, there is a artery, then the arterioles, veins, and venules. Then the artery converted into arteriole, and then it formed the fine capillary-like structure. And then blood back from the artery, and from artery it goes to the capillary, and from the capillary it back into the vein. And then this is the vein, right? So this is the structure of the capillary. You can write capillary and you can write as well blood vessels as well, right? Okay, what is this? This red portion which is very near to the here, this is called the sebaceous gland. इसको हम कहते हैं sebaceous gland. ये जो है ये एक सिक्रीशन करता है. ये किस चीज की सिक्रीशन करता है? ये आपके कुछ ऐसा फ्लूइड रिलीज करता है ये जो कि आपके स्किन को जो है ये जो आपके जो उसको ये सॉफ्ट रखने में ये हेल्प करता है. ये एक सीबम रिलीज करता है. ठीक है, ये आपके हेयर फॉलिकल से एक सीबम को रिलीज करता है. और ये जो सीबम जो होता है ये आपकी हेयर को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है और स्मूथ रखने में हेल्प करता है. और ये सीबम की प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगी तो ये हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को जो है वो डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा. और इसके अलावा इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एक्शन, और इट ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. It also prevent the growth of the bacteria. So these are the important point which you have to understand. These the sebaceous gland. Sebaceous gland में sebum produce होगा. Sebum जो है वो आपकी जो हेयर फॉलिकल्स को सॉफ्ट रखेगा और लुब्रिकेट रखेगा हेयर को, और इसके अलावा स्किन को सॉफ्ट रखेगा, स्मूथ रखेगा और डिहाइड्रेशन से बचाएगा हमारी स्किन को. और इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एक्शन, राइट. और ये इसके अलावा जो है ये हमारी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ से हमें प्रिवेंट करेगा. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सिबेशियस ग्लैंड. ओके, अब यहाँ देखिए ये जो है ये आप ये वाला क्या है, ये जो पर्पल वाला स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड. दिस इज कॉल्ड द स्वेट ग्लैंड. सही, यहाँ पे जो है वो स्वेट प्रोड्यूस होगा. और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है इसको हम कहेंगे स्वेट डक्ट. इसको हम कहेंगे स्वेट डक्ट. In the sweat gland, sweat produce, and then it goes into the sweat duct and release over there, and through the evaporation sweat evaporate, right. So this is all about the, okay, what is this purple color, these two things. And here most of the student confused. So these two things having a different name. The first one which I'm labeling here, this is called what? This is called the temperature receptor. This is called the temperature receptor. Which feel any stimulus. For example, when we talk about टेम्परेचर, सही है, जब हम हॉट इन्वायरमेंट में जाते हैं हमें सन रेज हमारी बॉडी के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो स्टिमुलस हो गया, और उस स्टिमुलस को हमारे स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम टेम्परेचर रिसेप्टर करते कहते हैं, वो इस चीज को स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, राइट. अच्छा, उसके बराबर में ये देखिए ये जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएंगे आपकी नर्व एंडिंग. ठीक है, ये नर्व एंडिंग है. तो डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज द टेम्परेचर रिसेप्टर एंड दिस इज द नर्व एंडिंग. दिस इज कॉल्ड द nerve ending. Okay, now this is the nerve ending, this is the blood capillaries, and what are these? Again, this is the very confusing thing which student ignore this. So what is this? This is called the pressure receptor. This is called the pressure receptor. So I am writing over there. This is called the pressure receptor, which is normally found in the hypodermis layer. Pressure receptor. There are so many pressure receptor in our body. So this is the pressure receptor. टेम्परेचर रिसेप्टर बिल्कुल आपकी स्किन के साथ अटैच हुआ होगा, और नर्व एंडिंग भी. ये डिफरेंस है, टेम्परेचर रिसेप्टर और नर्व एंडिंग बिल्कुल स्किन के नियरेस्ट होंगे, और प्रेशर रिसेप्टर जो होगा वो आपके थर्ड लेयर में होगा. अच्छा, नाउ व्हाट आर दिस? ये होंगे आपके, ये कहलाते हैं फैटी टिश्यू. फैटी टिश्यू भी कह सकते हैं आप इसको, फैटी लेयर भी कह सकते हैं. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, और इसको अब
फैटी डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं, फैटी लेयर्स कह सकते हैं, फैटी डिपॉजिट कह सकते हैं, एडिपोज टिश्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका अनदर नेम इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। तो फैटी टिश्यू कह लें आप, एडिपोज टिश्यू कह लें, इट्स अप टू यू। इसका काम ये होता है, इसका काम होता है इंसुलेट करना, हीट को स्टोर कर लेना। और ये ज्यादातर विंटर में ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होता है, जब हम फील करते हैं, वार्म फील करना चाह रहे होते हैं और हमें बहुत ज्यादा कोल्ड फील हो रहा होता है। तो यही जो होते हैं हमारे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ये जो है ये हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। और इसीलिए हम जो विंटर्स में जो है वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फूड लाइक दिस, जिसमें फैट्स हो। सही है, अगर हम जितनी ज्यादा फैट्स वाली चीजें खाते हैं, ड्राई नट्स खाते हैं, ये सब चीजें खाते हैं, तो हमें इससे अच्छे जो गुड फैटी एसिड्स प्रोवाइड होते हैं। और ये फैटी एसिड्स होते हैं, इट कीप आवर बॉडी वार्म। तो ये इंसुलेटिंग लेयर जैसा काम करते हैं। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्किन। इसकी आप एज इट इज इसी तरह की डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी फॉर यू। राइट, नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द पास्ट पेपर क्वेश्चन। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द पास्ट पेपर क्वेश्चन। जी, तो अब हम एक पास्ट पेपर क्वेश्चन का बाद में देख लेंगे, स्वेट ग्लैंड क्या होता है, प्रेशर रिसेप्टर क्या होता है, एवरीथिंग यू नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज दिस? इट्स द क्वेश्चन related to the skin. Here is a condition 1 and condition 2. Condition A and condition B is given for you. On figure 1.1, label each of the following sweat gland and the capillary. Now you are able to easily both the labeling. Where is the sweat gland and where is the capillary? So यहाँ देखिए भाई, ये दिस इज कॉल्ड द स्वेट ग्लैंड। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्वेट ग्लैंड। राइट, इसको हम कहेंगे स्वेट ग्लैंड। ओके, अब स्वेट ग्लैंड के बाद आप देखिए कैपिलरी। ये अभी मैंने आपको इससे पहले अभी वीडियो में दिखाया था, ये अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि व्हाट इज कैपिलरी। इसको अब आप बोलेंगे कैपिलरी। ठीक है, तो आपने लेबलिंग कर दी डायग्राम के अंदर जाके। राइट, एंड यू गॉट द 2 मार्क्स। use the information in figure 1.1 to suggest how environmental condition B is different from the environmental condition A. So yes, here is the important question. Environmental condition A and here environmental condition B. ओके, इन्वायरमेंटल कंडीशन बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए। अब हमें कहा गया कि बी को हमने कंट्रास्ट करना है। तो आप जरा गौर से देखिए, ये जो जिसको हमने ब्लड कैपिलरी कहा था, ये कुछ हमें डायलेट हुई भी नजर आ रही है। राइट, और ये हमें कुछ श्रिंक हुई भी नजर आ रही है। ठीक है, ये हमें कुछ श्रिंक नजर आ रही है और ये हमें डायलेट हुई भी नजर आ रही है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, ये देखिए इस डायग्राम में कि ये जो हमारी ब्लड कैपिलरी है, ये आपकी डायलेट हुई हुई है। इसमें जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ये कौन सा इन्वायरमेंट है, तो मैंने इसको लिखा हॉट इन्वायरमेंट, यानी इसमें हॉट इन्वायरमेंट को डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, जब हॉट इन्वायरमेंट को डिस्कस किया जा रहा है, तो ये अब आप इसमें गौर कीजिए कि ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है, ये थोड़ी सी आपको डायलेट दिखाई जा रही है। ठीक है, और इस कंट्रास्ट में आपने देखिए तो इसमें आपको ये थोड़ी सी नैरो दिखाई दी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पूरी डिटेल में बताया था थर्मल रेगुलेशन के बारे में। अगर आपको ने उसको मिस कर दिया है, तो आप थर्मो रेगुलेशन की वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरा होम्योस्टेसिस का नेगेटिव फीडबैक बताया था कि हमारी बॉडी में 2 तरह की कंडीशंस होती है। ठीक है, वैसो डायलेशन होता है और एक हमारी बॉडी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो जब हम वैसो डायलेशन की बात करते हैं, तो ये वाली कंडीशन जो है, इसमें हमारी स्किन में वैसो डायलेशन हो रही है। राइट, वैसो डायलेशन हो रही है और ये हमारे हॉट इन्वायरमेंट में होती है। जब हॉट इन्वायरमेंट में जब स्किन, देखिए जब स्किन जो है वो आपकी फील करती है वार्मनेस को, सही है, सराउंडिंग के वार्मनेस को जब वो फील करती है, तो सबसे पहले जो है वो कंट्रोल सेंटर तक ये बात जाती है। और कंट्रोल सेंटर में हमारा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो कमांड करता है, ब्रेन में होता है ये, और ये कमांड करता है। और ये हमारे टेम्परेचर रिसेप्टर जो है, जब इसको स्किन को डिटेक्ट करते हैं हॉटनेस को, हाइपोथैलेमस जो है वो कोर सेंटर है, वो कमांड करता है किसको, हाइपोथैलेमस इसके बाद कमांड करते हैं स्वेट ग्लैंड को। और वो स्वेट ग्लैंड से कहते हैं स्वेट ज्यादा प्रोड्यूस करने को। ठीक है, एक तो ये काम हो जाएगा इसके अंदर कि स्वेट ज्यादा प्रोड्यूस करने को कहेंगे। दूसरी बात क्या होगी, उसके कंट्रास्ट में जो ये ब्लड वेसल्स होगी ये डायलेट हो जाएगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएगी। वो क्यों होती है डायलेट, इसलिए होती है क्योंकि यहाँ आपको ब्लड वेसल डायलेट दिख रही है। ब्लड वेसल इसलिए डायलेट होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा, और ये स्किन की नियर आ जाती है, बिल्कुल नियर टू स्किन हो जाती है, ताकि ज्यादातर हीट को जो है वो लॉस कर सके इनटू द इन्वायरमेंट। और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो कि 37 टेम्परेचर होता है, ये कांस्टेंट हो जाए आपका। ठीक है, अच्छा, और
अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द स्किन इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन ए एंड स्किन इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन बी, राइट। टू डिफरेंसेस आपने बता रहे हैं। तो देखिए भाई, अगर हम कंडीशन बी में देखते हैं, तो इसमें जो स्वेट ग्लैंड है, क्योंकि ये हॉट एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसमें कैपिलरी जो है वो आपकी डायलेट हुई हुई दिख रही है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड, आप में इसके कह सकते हैं कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? आपने ब्लड वेसल्स की बात लिखी, तो कि ब्लड वेसल्स जो है वो आपको क्लियरली इसमें डायलेट नजर आ रही है। तो आपने लिखा इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट है, राइट। इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो आपको डायलेट नजर आ रही है, और राइट, इतनी ज्यादा, और ये नियर टू द स्किन, बिल्कुल स्किन के करीब आ जाएंगी। एंड इट नियर टू स्किन, ये स्किन के करीब आ जाएंगी, और ज्यादा से ज्यादा ये हीट को जो है वो लॉस करेंगी। अच्छा, हीट जो लॉस होती है, हीट जो लॉस होती है, इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। हीट लॉस के थ्री मेथड्स होते हैं, राइट। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आवर बॉडी lose heat all these three form: conduction, convection and radiation form, right। so अब हमने यहाँ पे लिखा ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, नियर टू स्किन आ जाएंगी, और ये क्या करने में हेल्प करेंगी? ये हीट रिलीज इनटू द सराउंडिंग, हीट को रिलीज कर देंगे, राइट। और जो स्वेट होगा, अच्छा अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब आप देखिए, स्वेट ग्लैंड होंगे, ये कंडीशन जो है वो तो उसमें आपको दिखा रहे हैं कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई है, तो इसमें तो ऑफकोर्स स्वेट ग्लैंड जो है वो आपका वर्क नहीं करेगा, बट हियर स्वेट ग्लैंड वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो स्वेट ग्लैंड है वो एक्टिव है कंडीशन बी में, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट, राइट। स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होगा, प्रोड्यूस करेगा, स्वेट प्रोड्यूस करेगा, स्वेट प्रोड्यूस होके जो है वो स्वेट डक्ट में आएगा, सही है। ये जाएगा स्वेट डक्ट में, और स्वेट डक्ट से जो है वो आपका जो स्वेट होगा वो एवोपरेट हो जाएगा, राइट। ये सारे कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा, दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो आपने यही वर्ड्स पेपर में यूज करना है। आप, हाँ, एक और बात भी आप लिख सकते हैं कि जब ये सारी आपने एक डिफरेंसेस बता दिए, ये तो आपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया कि भाई ये जो ब्लड वेसल्स थी ये डायलेट हुई हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई है, ये आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहते क्या है? इस पूरे मैकेनिज्म को, ये भी आपका कीवर्ड है, आप याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं वेजोडाइलेशन, ठीक है, इसको हम वेजोडाइलेशन कहते हैं। ऑलराइट, सो आई होप you understand this past paper question. Okay, okay, this is another question about the past paper question, and I hope you can easily do this question. Just pause the video and try to solve this question yourself. Yes, this is again the human skin, and this is the past paper question, P1. Yes, so which label describes the structure Y and Z, right? Which describe Y and Z. Again, this is Y is the sweat gland. So I am writing here, this is the sweat gland. This is the sweat gland, right? And what is Z? Z is the blood vessels. So everything is easy for you now. So what is the answer? Just pause the video and try to give the answer yourself. So what will be the right answer? Give me the answer in the comment box. It's very easy. All right. All right, this is the question which I told you. This is the 2026 past paper question. Yes, this is the 2026 past paper question, a recent past paper question. So let's try to do it together. Okay, figure 6.1 shows a section through a human skin, right? Identify the part label X, W and Y. W and Y को अब हम लेबल करते हैं, right? So what is W? W. Yes, this is the hair, as we know that, and this is the hair erector muscles. So I am writing here hair erector muscles. Okay, the second one is the Y is the sweat gland. Sweat gland. Okay, part X
and Z help to maintain a constant internal body temperature. When a person start exercising, their internal body temperature increases. Name the part of the brain which monitor body temperature. Yes, I told you about this in the previous slide. Hypothalamus. All right, this is called the hypothalamus. Okay, this is the third marks question, and here most of the time student lose their marks. क्यों वो लूज करते हैं? क्योंकि वो सही कीवर्ड्स का यूज नहीं करते, और जब हम सही कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो आप फिर मार्क्स जो है वो लूज कर देंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्स एंड जी इन रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर बैक टू द नॉर्मल लेवल आफ्टर एक्सरसाइज। अच्छा, पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्स क्या है। ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, राइट, ये ब्लड वेसल्स हैं, या आप इनको कैपिलरी कह सकते हैं। और जी क्या है हमारा? जी ब्लड वेसल्स और जी। तो ये आपकी जो है, ये जो चीजें हैं, ये हमारी आर्ट ब्लड वेसल्स, ओके, ये हमारे जो है, और ये आर्टरी है। ब्लड वेसल्स देखिए, जो ऊपर जो है ना, ये वाली चीज जब आपकी आर्ट्रियोल आगे जाके कैपिलरी में कन्वर्ट हुई है, तो हम इसको कह सकते हैं बल्कि कैपिलरी, इसको हम कैपिलरी कहेंगे, राइट। और नीचे जो लेबलिंग करने को कह रहे हैं, तो हम इसको आर्टरी कह सकते हैं, ठीक है, आर्टरी या आर्ट्रियोल कह सकते हैं, वो आगे जाके कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपसे बोले जा रहे हैं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्स एंड जी इन रिड्यूसिंग बॉडी टेम्परेचर बैक टू द नॉर्मल लेवल आफ्टर एक्सरसाइज। जब हमने एक्सरसाइज की, हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ, राइट, बिल्कुल हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो राइज हो जाएगा। और जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो व्हाट विल हैपन? तो इससे क्या होगा कि आपकी, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो राइज हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो राइज हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी आर्ट्रियोल्स होंगी, जिनको हम कह रहे हैं एक्स, इट मूव अपवर्ड, ये अपवर्ड मूव करेंगी, और ये ज्यादा ज्यादा हीट को लूज कर देंगी, राइट, बॉडी से निकाल देंगी। अच्छा, और ये बिल्कुल स्किन के करीब आ जाएंगी। अब सेकेंडली क्या होगा, जो जी है, जी को हम क्या कह रहे हैं? ब्लड वेसल्स। अब जो जी जो है, जिसको हम ब्लड वेसल्स कह रहे हैं, इसको हम ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं, जी को, ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड वेसल्स होंगी वो आपकी डायलेट होंगी, और डायलेट होने के बाद ये क्या करेंगी? ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करवा देंगी ब्लड वेसल्स के थ्रू, और इससे जो है वो ज्यादा ज्यादा जो है वो हीट जो है वो लूज होगी, फास्टर लूज होगी, और लूज होकर बॉडी से जो है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। और इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल बैक हो जाएगी, अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी, और आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो मेन बात है, आप क्या लिखेंगे कि इसके अंदर आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात देखी कि किस तरह से आपका करेक्टिव मैकेनिज्म होगा। करेक्टिव मैकेनिज्म ऐसा होगा कि आर्ट जो आपकी जो एक्स है, ये जो है ये आपकी क्या होंगी? डायलेट होंगी, ठीक है। सबसे पहले हम अगर एक्स की बात करते हैं, तो एक्स क्या चीज थी हमारी? एक्स आपकी आर्ट्रियोल्स थी, ठीक है। आपकी ये आर्ट्रियोल्स आप कह सकते हैं या कैपिलरी कह सकते हैं, तो ये दोनों बातें सही होंगी, ठीक है। अगर हम इसको आर्ट्रियोल भी लिखते हैं तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये आपकी क्या होंगी? डायलेट होंगी। ये आपकी डायलेट हुई। जब ये डायलेट हुई तो इन्होंने ये क्या करा कि हीट को लॉस किया, और आपकी जो डायलेट होने के बाद ये बिल्कुल स्किन के नियर आ गई, ठीक है, नियर टू स्किन, ये स्किन के बिल्कुल नियर आ गई, इन्होंने हीट को ज्यादा ज्यादा लॉस किया, ठीक है। अभी से ब्लड वेसल्स की भी यही वाली बात है कि ब्लड वेसल्स ने क्या किया? ये डायलेट हुई, और उन्होंने जो है वो क्या करा? जी, इसने भी क्या करेगी? जो सी है कलेक्टिवली ये भी क्या काम करेगी? ये भी क्या होंगी? ब्लड वेसल्स जो है, ये ब्लड वेसल्स जो है ये आपकी डायलेट होंगी, डायलेट होंगी, मूव अपवर्ड, अपवर्ड, नियर टू स्किन आ रहेंगी ये, ठीक है, नियर टू स्किन आ रहेंगी, और हीट को लॉस करेंगी, हीट लॉस करेंगी, ठीक है, हीट को ये लॉस कर देंगे फ्रॉम द बॉडी। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम बॉडी। और इसके बाद आपकी जो कंडीशन होगी, यानी कि अब आप यहाँ पे बात लिख देंगे कि यहाँ पे होम्योस्टेसिस हुआ, एंड योर बॉडी कम टू नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, आपकी बॉडी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। आपने डायलेट का वर्ड यूज करना है, आप यहाँ पे वेजो डायलेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं, हीट लॉस हुआ, नियर टू स्किन आ गया, एवोपरेशन का वर्ड यूज करेंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू हैव टू use in your past paper question. I hope you understand this question, right? So this is all about the
for Miss Rizzy Skin. I hope you understand. If you have any problem, so you can comment me. Allah